Do you know why we're able to hold things in our hands? Why we're able to write with a pencil on a sheet of paper? Simple. It is only because of the friction that we're able to hold the things right with a pen or a pencil in our hand, and also we're able to walk only because of the friction. Hello everyone, my name is Sucheta and today our topic is going to be about friction. The topics that I'll be covering today are friction and what is the cause of friction. Then what are the different types of friction? We'll be studying that. Then what are the advantages and disadvantages of this friction? Then if there are advantages and disadvantages, we'll also see what are the ways to reduce the friction, to overcome the disadvantages and ways to increase the friction. So without wasting time, let us go to the topic. So what is a frictional force? हमने तो टाइप्स ऑफ फोर्सेस देखा है, कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, है ना? तो उसमें से फ्रिक्शनल फोर्स इज अ कांटेक्ट फोर्स. नाउ व्हेन इट कम्स इनटू प्ले, सपोज देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स, है ना, which are in contact with each other. One is rolling or sliding or moving on another surface. If there are two surfaces which are moving on to each other, then only the frictional force will come into picture. So it is nothing but a force which acts at the surface of the contact when one body moves or tries to move upon another body. जैसे आप पिक्चर में भी देख सकते हो ना, एक बॉक्स मूव हो रहा है एक सरफेस के ऊपर, तभी ये फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा. There are different types of forces. We'll be studying about those forces also. Now, first is the static friction, then the sliding friction, फिर होता है rolling friction and fluid friction. So we'll see first of all what is the cause of friction. जैसे हमने बोला है कि हाँ, एक सरफेस के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट कुछ मूव करता है तभी ये फ्रिक्शन होता है. सो व्हाई इज इट हैपनिंग? व्हाई कांट जस्ट ऑब्जेक्ट स्लाइड? Because if you see the diagram here, it is showing that even if you see a surface as smooth or a polished surface, it will still have some irregularities. तो दो सरफेस के जो irregularities है वो इंटरलॉक हो जाती है, एंड उसकी वजह से क्या होता है, ये मूवमेंट जो स्मूथ होना चाहिए वो नहीं होता, एंड दोज इंटरलॉकिंग ऑफ द irregularities comes into picture and उसे हम बोलते हैं फ्रिक्शन, है ना. अब जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्फेसेस हमने देखा है, कई सर्फेसेस रफ होते हैं, कई सर्फेसेस स्मूथ होते हैं. तो जो रफ सर्फेस होता है उसमें इरेगुलरिटी ज्यादा होती है और उसकी वजह से क्या होती है, वो इंटरलॉकिंग, तो जो सर्फेस ऑफ कॉन्टैक्ट है वो रिड्यूस हो जाता है, उसकी वजह से फ्रिक्शन ज्यादा ऑफर करते हैं रफ सर्फेसेस. So it is always rough surfaces will have more friction, the smooth surface will offer rather less friction. अब देखते हैं टाइप्स क्या है. फर्स्ट होता है स्टैटिक फ्रिक्शन. स्टैटिक मतलब क्या है? जब मूवमेंट नहीं हो रहा, एक ऑब्जेक्ट दूसरे के ऊपर अभी मूव करना स्टार्ट नहीं हुआ है. तो जैसे आपने एक्सपीरियंस किया होगा, देयर इज अ ह्यूज बॉक्स, इफ यू आर ट्राइंग टू पुश दैट हैवी बॉक्स, तो जब स्टार्ट ही करना होता है पुश, तब हमें ज्यादा फोर्स लगता है. Why? Because before even we start pushing, there is a friction. Friction is always acting opposite to the direction of motion. है ना, हम हमेशा देखते हैं friction is always trying to oppose the motion. तो जब ये heavy box हम push करने की कोशिश करते हैं तब क्या होता है, वो बहुत difficult लगता है, because that time static friction is acting against the force that we are applying. है ना. So it is, the object has not yet started moving, but there is an opposition, but it will act only and only when you start pushing. तो जब तक आप फोर्स नहीं लगाओगे तब तक फ्रिक्शनल फोर्स भी एक्ट नहीं करेगा. तो व्हाट विल बी द डेफिनेशन? So it's a frictional force that comes into play when one body tends to move over the surface of another, but the actual movement has not yet started. एक बार स्टार्ट हो जाता है तो आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि पुशिंग इजी हो जाती है ना, बट वो फर्स्ट मोमेंट जब अभी तक ऑब्जेक्ट मूव नहीं हुआ है, उस टाइम पर मैक्सिमम फ्रिक्शन ऑफर होता है, उसे हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, बिफोर इवन द बॉडी स्टार्ट्स मूविंग. सो इट कम्स इनटू प्ले एंड ओनली व्हेन यू अप्लाई द फोर्स. जब तक आप फोर्स नहीं अप्लाई करोगे तब तक फ्रिक्शनल फोर्स, रादर स्टैटिक फ्रिक्शन, एक्ट ही नहीं करेगा, राइट. सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज consequential force. Consequential force क्या होता है? It comes into play when there is another force acting. वो अपने आप से एक्ट नहीं करेगा, वो तभी एक्ट करेगा जब किसी और फोर्स ने काम करना शुरू किया है.
So when there is no motion, the kind of friction that is offered is called as static friction. The next is called as sliding friction. Sliding friction is the force which comes into play when one object slides onto the surface of another object or some other surface. तो जैसे हम देखते हैं कि एक बार वो स्टैटिक फ्रिक्शन ओवरकम कर लिया तो ऑब्जेक्ट क्या करता है, स्लाइड करने लगता है. उस केस में जो ऑपोजिशन तो हमेशा ही होने वाली है, राइट. सो दैट काइंड ऑफ फोर्स विच इज कमिंग इनटू प्ले व्हेन द ऑब्जेक्ट इज स्लाइडिंग, है ना, वो धीरे से स्लाइड कर रहा है. जैसे आप इसमें देख रहे हो कि मोबाइल फोन स्लाइड कर रहा है ना, उस टाइम पे कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करेगा, उस टाइम पे जो होगा उसे हम बोलेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन. एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेसर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन. तो स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होता है, मैक्सिमम इज स्टैटिक. आफ्टर दैट विल बी द the amount of sliding friction is little lesser than the static friction. So आप slide पे भी अगर खेलते हो, है ना, उस टाइम पे कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करता है, that is nothing but the sliding friction. अब होता है नेक्स्ट रोलिंग फ्रिक्शन. तो डिफरेंस समझिए, एक होता है स्लाइडिंग, एक होता है रोलिंग. तो इफ वी टॉक अबाउट अ बॉल or a ring, it will not slide, but it will roll over the surface, right? So it is the force of friction which comes into play when one object rolls over another surface, है ना. तो एक surface पे जब वो roll हो रहा है, जैसे आप देख रहे हो कुछ balls roll हो रहे हैं slide से, so in that case क्या हो रहा है, इसमें कौन सा friction act करेगा, that will be the rolling friction. So rolling friction is lesser than the sliding friction and the static friction. तो हम अगर sequence देखें या उसकी the impact देखें तो static friction is maximum, followed by sliding, and then the rolling friction सबसे कम रहता है, right? Then we'll see fluid friction. Now what are fluids? Fluids are nothing but anything that can flow. तो इसमें liquids भी आ जाते हैं, gases भी आ जाते हैं, right? Suppose any object which is passing through the fluid, it could be gas or air, or we can say water. Just example लेके, right? Now the force of friction exerted by those liquids or gases on the objects which are going through or which are passing through them, we call that as fluid friction, right? And fluid friction कहाँ पे observe होता है, जैसे पानी में fishes है, right? Fishes swim कर रहे हैं, या फिर even aeroplanes है, birds है, which are flying in air, they will experience this fluid friction. And fluid friction depends on few things. जैसे what is the speed of the object which is moving. तो आपका fluid friction उस पर depend करता है कि speed क्या है object का. Then it depends also on what is the shape of the object. Generally fishes का या aeroplanes का और even बर्ड्स का एक शेप होता है, उसे हम स्ट्रीमलाइन शेप बोलते हैं, राइट. सो दैट ऑफर्स लीस्ट फ्लूइड फ्रिक्शन. तो दैट इज व्हाई दे हैव बीन डिजाइन्ड लाइक दैट, है ना. तो इट डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज पासिंग थ्रू द फ्लूइड्स एंड ऑल्सो द नेचर ऑफ द फ्लूइड. तो फ्लूइड कैसा है, उसका डेंसिटी कैसा है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितना फ्लूइड फ्रिक्शन एक्ट करेगा, राइट. सो दिस वाज अबाउट द टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन. The static friction, sliding friction, rolling friction, and the last one is fluid friction. We'll now move on to see कि types तो देख लिया friction की क्या है, but ये friction से होता क्या है, what are the effects? So 3 basic effects we'll see. First thing is the friction opposes motion. तो anytime you apply the force to move the object, बट ये कंडीशन है कि दो ऑब्जेक्ट्स का देयर हैज टू बी कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू, देयर सर्फेसेस नीड्स टू बी इन कॉन्टैक्ट. ये क्या करेगा, फ्रिक्शन हमेशा ही अपोज करेगा मोशन. whichever direction you are applying the force, the frictional force will be in exact the opposite direction of the applied force, or rather we can say the motion, है ना, जिस डायरेक्शन में मोशन है ऑब्जेक्ट का उसके ऑपोजिट. सो इट ऑलवेज ट्राइज टू स्टॉप द ऑब्जेक्ट. तो आपने देखा होगा जैसे आप फ्लोर पे बॉल रोल करते हैं, क्या हो जाता है, आफ्टर सम टाइम विदाउट इवन एनीबडी ट्राइंग टू स्टॉप, इट स्टॉप्स ऑन इट्स ओन. तो इसका मतलब क्या है, वहां पे ये फ्रिक्शनल फोर्स ही है जो उसे अपोज करके उसे स्टॉप कर रहा है ना. सो द फ्रिक्शन विल ऑलवेज अपोज द मोशन एंड मेक द object stop move. So that is the first effect. Then it produces heat.
ठंड लगती है हम क्या करते हैं, रबर पाम्स, उससे क्या होता है, हीट जनरेट होती है, राइट, एंड दिस इज नथिंग बट फ्रिक्शन. टू surfaces rubbing onto each other is nothing but the friction. So friction produces heat. करेक्ट, दैट इज वन कॉमन इफेक्ट. तो आपने देखा होगा कहीं पे भी कुछ भी मूविंग पार्ट्स है मशीन के, कहीं पे व्हीकल्स के, कुछ ऑटोमोबाइल्स के, एवरीवेयर यू विल सी देयर इज अ हीटिंग बिकॉज ऑफ द मूविंग पार्ट्स के बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसकी वजह से ये हीटिंग भी होती है, विच इज नॉट रियली यूजफुल. काफी एनर्जी वेस्ट भी होती है उसमें, बट यू कांट अवॉइड दैट, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी देयर. So that is one more effect. Now next is friction causes wear and tear. हम देखते हैं नए नए शूज लाए, वी स्टार्ट वेयरिंग इट, आफ्टर अ मंथ 2 और 3 months क्या हो जाता है, उसका सोल घिस घिस के फ्रिक्शन की वजह से फ्लैट हो जाता है, राइट. लाइकवाइज द टायर्स ऑफ द ऑटोमोबाइल्स, वो भी क्या है, ओवर यूज से क्या हो जाता है, वो वेयर एंड टेयर है ना. फ्रिक्शन कॉजेज वेयर एंड टेयर. तो हमें क्या करना पड़ता है, ऑल द टाइम वी हैव टू कीप रिप्लेसिंग द शूज अपना, और इवन द ऑटोमोबाइल टायर्स, इवन मशीनरीज, उनके साथ भी ये होता है, तो हमें वो भी रिप्लेस करना पड़ता है. तो इट इज नथिंग बिकॉज, बट इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन. सो दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स ऑफ फ्रिक्शन. अब हम बोलते हैं कि चलो इफेक्ट्स हो गया, बट इज इट दैट फ्रिक्शन इज गिविंग अस समथिंग गुड? कुछ एडवांटेजेस है क्या? डेफिनेटली है. वी आर एबल टू वॉक अराउंड बिकॉज ओनली द फ्रिक्शन. सपोज फ्रिक्शन है ही नहीं बिटवीन द ग्राउंड एंड आवर फीट, तो क्या हम अच्छे से ग्रिप करके पैर को हम चल पाएंगे? नहीं. सोचो अगर आप एक आइस वाले फ्लोर पे चलने की कोशिश करोगे, क्या हो जाएगा, यू विल स्लिप, है ना, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन है नहीं. तो फ्रिक्शन है इसीलिए हम कंफर्टेबली ग्राउंड पे वॉक कर पाते हैं. Then another advantage of friction is we see the tire, like vehicles are moving on the road comfortably. कहीं पे skid नहीं हो रहा है, slip नहीं हो रहा है. क्यों? क्योंकि वहां पे भी friction act कर रहा है between the tires and the ground, या भी आप बोल दो कि रोड पे है ना, तो उसके बीच में फ्रिक्शन है, तभी वो कंफर्टेबली ग्रिप हो रहा है रोड पे और आगे मूव कर पा रहे हैं. देन वी सी कि चलो दीवार में कुछ फ्रेम लगाना है, कुछ लगाना है, तो हम क्या करते हैं, we fix a nail in the wall. Why that nail keeps stay there in the wall? Because of the friction. जो हम फर्नीचर भी देखते हैं उसमें भी आप देखोगे स्क्रूज, नट बोल्ट्स ये फिक्स होते हैं. Why they are able to fix it properly? Only because of the friction. सिंपल एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया, पेपर पे हम लिख पा रहे पेंसिल से बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. सपोज आपको एक ग्लॉसी पेपर दे दिया और आपको बोला कि पेंसिल से लिखो, क्या आप लिख पाओगे? नहीं. ग्लॉसी पेपर का क्या होता है, सरफेस बहुत स्मूथ पॉलिश सा होता है, राइट, तो उसके ऊपर फ्रिक्शन कम हो जाता है, तो आप कंफर्टेबली लिख नहीं पाते हैं. तो ये भी एक एडवांटेज हुआ. सिंपल राइटिंग जो हम एवरी डे टू डे करते हैं, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन. अब हमने बोला कि कार्स मूव कर रहे हैं, व्हीकल्स मूव कर रहे हैं रोड पे बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, बट वो मूव करते करते हमें रुकना भी तो है. So how do we stop the vehicle? By applying the brakes. And that is also possible due to the friction. Friction होता है ब्रेक शू में और the wheel of the vehicles, है ना, वो friction की वजह से ही opposition होता है for the motion and we are able to stop the vehicle. So this is also an advantage that move करना automobiles is also possible due to friction, but उसको रोकना भी possible है due to only the friction. So many advantages, isn't it? We can't think our life, regular routine without friction. So these are the advantages of friction. Now कुछ disadvantages है जरूर है. तो क्या है उसमें से disadvantages? हमने जैसे देखा कि wear and tear of machinery, machine parts, जो भी मूवेबल पार्ट्स है जो एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं उनमें हमेशा से फ्रिक्शन होता है. फ्रिक्शन से क्या होता है, wear and tear of the parts. So you have to keep replacing the parts. अपना एग्जाम्पल हमने जैसे लिया कि शूज का रेगुलर एग्जाम्पल ऑल्सो, they wear out after 5 months, 6 months, and you have to replace. You need to buy new things, right? Same ways your tires of the vehicles, all of them will wear out over the period of time due to the friction. So you have to keep replacing that, right? That is one disadvantage if we look at it. Then we've seen that it generates heat. Now हम देखते हैं कि हाँ machines in the factories are working, we need them to work
वी वांट टू गेट द वर्क डन फ्रॉम देम, बट एट टाइम्स हम देखते हैं कि हीटिंग ज्यादा हो रही है, तो जो भी एनर्जी है वो हीट के फॉर्म में लॉस हो रही है। दैट मीन्स क्या है, काफी सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है ड्यू टू द फ्रिक्शन और रादर द हीट कॉज ड्यू टू द फ्रिक्शन, तो वो हमें मिनिमाइज करना आना चाहिए। तो ये वेस्टेज ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो वन डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन ना। अब हमने देखा कि चलो कुछ एडवांटेजेस है कुछ डिसएडवांटेजेस है, तो इज फ्रिक्शन रियली गुड और बैड? Okay, that is why the statement is there that friction is a necessary evil. फ्रिक्शन के बिना हम सिंपल से सिंपल चीज है जो वॉकिंग, वी कांट डू विदाउट फ्रिक्शन, वी कांट इवन वॉक विदाउट फ्रिक्शन, वी कांट यूज व्हीकल्स विदाउट फ्रिक्शन. So it is necessary, but at the same time we lose a lot of energy in the form of heat, and we keep have to replace the shoes or tires because it happens that there is a wear and tear also. So we can't really say it is good or bad, but it is a necessary evil, isn't it? Right. नाउ लेट्स सी कि चलो फ्रिक्शन है, हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कैसे करें? कई जगह पे हमें जरूरत पड़ती है कि फ्रिक्शन रिड्यूस किया जाए. सो व्हाट आर द वेज ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन? फर्स्ट थिंग इज स्ट्रीमलाइनिंग. दिस इज रिलेटेड टू द फ्लूइड फ्रिक्शन. फ्लूइड फ्रिक्शन है ना, जो जैसे फिशेस आर स्विमिंग इन वाटर, जैसे एरोप्लेन्स हुआ, बर्ड्स हुआ, आपने देखा होगा उनका एक शेप टिपिकल सा होता है, राइट, विच इज नैरो इन द बिगिनिंग, फिर थोड़ा सा वाइड होके एंडिंग टूवर्ड्स इट्स टेल अगेन वो नैरो हो जाता है. इस शेप को हम बोलते हैं स्ट्रीम लाइनिंग. नाउ व्हाई द एरोप्लेन्स और इवन बर्ड्स, नाउ एरोप्लेन डिजाइन किया गया है बर्ड्स को देख के, है ना, उनका शेप कैसा है. सो व्हाई दे डू हैव दैट स्ट्रीम लाइनिंग शेप? बिकॉज इट ऑफर्स द लीस्ट रेजिस्टेंस. तो अगर ये शेप में एरोप्लेन बनाया जाए तो वो ऑफर जो रेजिस्टेंस होता है, एयर रेजिस्टेंस कम हो जाता है, एंड यू कैन मूव फास्टर इन एयर और इवन इन वाटर. तो बोट या फिर शिप्स का भी शेप वैसा ही बनाया जाता है. दैट इज टू रिड्यूस द फ्रिक्शन. अब आप देखते हैं कि फ्लोर्स आर पॉलिश्ड, है ना. ये पॉलिशिंग इज वन वे टू रिड्यूस द फ्रिक्शन सो दैट द सर्फेसेस स्मूथ एंड जहाँ पे आपको जरूरत है स्मूथ सर्फेस की, हाँ वहां पे आप पॉलिशिंग करते हो. आपने कैरम तो खेला होगा, उसमें जब आपका स्ट्राइकर मूव नहीं करता है, व्हाट डू, यू स्प्रिंकल पाउडर ऑन इट, राइट. उससे क्या होता है, मूवमेंट इजी हो जाता है. दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ पॉलिशिंग दैट यू आर डूइंग टू रिड्यूस द फ्रिक्शन. देन वी टॉक्ड अबाउट सो मेनी मशीनरीज, फैक्ट्री के कुछ काम की, है ना, जो हीट अप हो जाती है, तो उसमें एनर्जी लॉस कम करना है, जैसे हीट लॉस कम करना है, तो क्या कर सकते हैं, वी पुट ल्यूब्रिकेंट्स, है ना, ल्यूब्रिकेशन होता है, वी पुट ऑयलिंग, है ना, ऑयल डालते हैं, कुछ करते हैं सो दैट वो मूवमेंट स्मूथ हो जाए बिटवीन द गियर बॉक्स या जो भी मूविंग पार्ट्स है जो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं. तो ल्यूब्रिकेशन या ऑयलिंग करते हैं जिससे फ्रिक्शन रिड्यूस किया जा सकता है. Then there are ball bearings. Ball bearings also will reduce the friction and eventually उसकी वजह से क्या होता है, heating is also reduced. एक और तरीका है जैसे हम wheels प्रोवाइड करते हैं. सोचो अगर सूटकेस आपको उठाना है या स्लाइड करना है तो उसमें एफर्ट ज्यादा लगेगा, बट रादर हमने अगर उसको व्हील लगा दिया तो वो क्या हो गया, ट्रॉली सूटकेस, राइट. एंड यू कैन सिंपली, मतलब छोटा बच्चा भी उसे स्लाइड मतलब रोल करके ले जा सकता है. तो रोलिंग की वजह से हमने देखा है rolling friction is the least one, so it offers least friction, so it becomes easy movement if you put wheels. So that means reducing friction is possible by providing the wheels. So why do we need to increase friction? जैसे हमने बोला कि वॉक करना है, चलना है, अगर हम बार बार स्लाइड होते रहे तो क्या होगा, क्या होगा, इज इट फिजिबल कि हम वॉक भी कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, है ना. वैसे कुछ केसेस में हमें फ्रिक्शन इंक्रीज करना पड़ता है. तो जैसे टायर्स हमने देखा है, हमेशा टायर्स में डिजाइन बनी रहती है, बट इट्स नॉट जस्ट फॉर एनी पर्पज, इट इज टू द ग्रूव्स आर प्रोवाइडेड सो दैट इट ऑफर्स अ बेटर ग्रिप ऑन द रोड. तो ग्रिप मतलब क्या है, ग्रिप क्यों आता है, अगर फ्रिक्शन है तभी बेटर ग्रिप आएगा, तभी मूवमेंट स्मूथ होगा, राइट. सो द टायर्स हैव बीन प्रोवाइडेड विद दिस ग्रूव्स टू इंक्रीज द फ्रिक्शन सो दैट रोड पे व्हीकल्स स्किड ना करें, स्लिप ना करें, राइट. जैसे ही इवन हमारे शूज पे भी आप देखोगे तो ऐसे ग्रूव्स होते हैं, कुछ डिजाइन होता है, सो दैट वी आर एबल टू हैव अ बेटर ग्रिप ऑन द रोड व्हाइल वॉकिंग. जो माउंटेनियर्स होते हैं, इवन द फुटबॉल प्लेयर्स, इफ यू सीन, दे हैव बीन प्रोवाइडेड विद द स्टड्स
शूज में स्टड्स लगे होते हैं, वो स्टड्स क्या करते हैं, दे आर यूज टू इंक्रीज द फ्रिक्शन सो दैट ग्राउंड पे या इवन व्हेन वी टॉक अबाउट द माउंटेनियर्स वो आइस पे उनका ग्रिप अच्छा बना रहे. सो दैट इज वन वे ऑफ इंक्रीजिंग द फ्रिक्शन. अब जैसे देखते हैं कि रफ सरफेस होता है किसमें, जो ग्राइंडिंग स्टोन्स होते हैं ना, ग्राइंडिंग स्टोन्स डू हैव रफ सरफेस. नाउ व्हाट इज इट यूज फॉर, जैसे हमें कुछ भी ग्रेन्स ग्राइंड करना है, अगर स्मूथ सरफेस होगा तो क्या हो जाएगा, वो स्लाइड होता होता रहेगा और ग्राइंडिंग पॉसिबल नहीं होगी. तो इसकी वजह से हमें वो सरफेस जो ग्राइंडिंग स्टोन्स का है उसे भी रफ बनाना पड़ता है टू इंक्रीज द फ्रिक्शन. नेक्स्ट इज द कन्वेयर बेल्ट, हम जो देखते हैं ना एयरपोर्ट्स पे वगैरह. तो वाई डू वी हैव टू गिव देयर ऑल्सो अ रफ सरफेस सो दैट वो बेल्ट का ग्रिप अच्छे से बना रहे हैं उसके ऊपर. अगर वो नहीं होगा तो बेल्ट क्या करता रहेगा, स्लिप करता रहेगा. तो इसकी वजह से हमें वहां पे भी फ्रिक्शन इंक्रीज करना जरूरी है. सो ऑल दीज वर द एग्जांपल्स व्हाई वी नीड टू increase the friction. So in this video we've seen today why friction is necessary evil and why how can we increase or decrease the friction according to our requirement. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा है. अगर अच्छा लगा है तो पक्का शेयर और सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू सो मच. बाय बाय.